Hello students, how are you? I hope you all are well. Myself, Anwar Kumar Dubey, I am a chemistry teacher. Today we are going to study about a new topic, discovery of proton or Carnot rays or positive rays. Okay? We know that atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral. Why? You know very well. Atom is the consist of number of electrons and number of protons are same. In atom, number of electrons and number of protons are same. It means we can say that atom behave as electrically neutral. Okay. Therefore, after the discovery of electron, it was clear that the atom has positive charge. Okay. तो उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई. वन साइंटिस्ट इज गोल्डस्टीन. साइंटिस्ट नेम इज गोल्डस्टीन in 1886. Goldstein in 1886 repeated Thomson's experiment by the using of perforated cathode. Perforated cathode का मीन्स क्या होता है कि जिसमें होल्स बने हो, बीच में जिसमें क्या बने हो, होल्स बने हो, दैट इज परफोरेटेड कैथोड. तो गोल्डस्टीन 1886 repeated Thomson experiment by the using of perforated cathode and applied high potential about 10,000 volt at very low pressure. After that, he observed a glow is produced. A glow is formed or produced behind the perforated cathode. Okay. When perforated cathode is not used, so ग्लो इज नॉट प्रोड्यूस. तो ग्लो जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है. और इफ परफोरेटेड कैथोड आर यूज्ड, ग्लो आर प्रोड्यूस्ड. इफ परफोरेटेड कैथोड इज यूज्ड तो ग्लो इज प्रोड्यूस्ड. और इफ परफोरेटेड कैथोड इज नॉट यूज्ड, ग्लो इज नॉट प्रोड्यूस्ड. ओके. it means positive rays. Positive rays or these rays passed through holes of perforated cathode and produced glow. It means we can also, हम ये भी कर सकते हैं कि these rays is also called Carnot rays. These rays is also called Carnot rays. इसे हम Carnot rays भी कर सकते हैं. Why? Because these rays pass through holes of perforated cathode. So we can say these rays are also called Carnot rays. Okay? Any problem? समझ आ गया? One scientist is W. Wine proved that Carnot rays is the made up of positive rays and named it proton. और उन्होंने इस रेस का नाम क्या दिया? प्रोटॉन नाम दिया. ओके. लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन का E/m वैल्यू कैलकुलेट किया था. हमने बताया था कि E/m वैल्यू is not depend in the nature of gas
or electrode material. But in the case of discovery of electron, E by m value is different. Why? कैसे कहेंगे? The E by m ratio of positive rays, the E by m ratio of positive rays depends upon the nature of gas, which is feed in discharge tube, मैंने क्या कहा कि the E by m value for positive rays depends upon the nature of gas which is filled in discharge tube. When hydrogen gas filled in discharge tube, the E by m value, the value of E by m for hydrogen gas is maximum. अगर हम किसी और गैस को भर देते हैं या फिल कर देते हैं तो E by m की वैल्यू मैक्सिमम नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसका मास सबका क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं तो इसका मास सबसे कम होता है, जिससे इसकी E by m की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। तो मैंने क्या कहा कि the E by m value for hydrogen gas is maximum. Why? Because m मतलब mass, because m for hydrogen gas is minimum. ओके, क्लियर हो गया? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि the E by m ratio for hydrogen gas, ये कह सकते हैं the E by m ratio for positive rays depends upon the nature of gas which is filled in discharge tube. When hydrogen gas filled in the discharge tube, so E by m value is maximum. Why? Because m means mass, m for hydrogen gas is minimum. Okay? तो ये क्या था? हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। और फ्लो मतलब कि यहाँ पर फ्लोरेसेंस उत्पन्न हो रहा है। फ्लोरेसेंस मतलब चमक उत्पन्न होती है। लेकिन कब उत्पन्न होता है? जब हम परफोरेटेड कैथोड का यूज करते हैं, नॉट सिंपल कैथोड एज अ इलेक्ट्रॉन की तरह, बल्कि कैसा होना चाहिए? परफोरेटेड, तब यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस होता है। अगर नहीं यूज करते हैं तो यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ positive rays. Discovery of electron and proton is the most important, but in this year most of the topics removed from your syllabus by the CBSE. Okay, लेकिन ये टॉपिक आपकी बार नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये टॉपिक पढ़ा देता हूँ। प्रॉपर्टीज of positive rays. What is first properties कहें क्या कि these rays always travel in straight line. Okay, these rays मतलब positive rays always travel in straight line in opposite direction. ओके, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं। ओके, तो these rays also travel in straight line. मैंने लास्ट क्लास में इसको प्रूव भी किया था। यू मे आस्क क्वेश्चन कि हाउ यू कैन से पॉजिटिव रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो मैं आई विल प्रूव इट, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं या प्रूव करूंगा कि व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ पॉजिटिव रेज, ये सपोज दैट ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, दिस इज द परफोरेटेड कैथोड और ये हमारा क्या है? एनोड। ओके, नेगेटिव
पॉजिटिव और ये हो गया पॉजिटिव। और सपोज दैट यहां से पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो व्हेन अ ओपेक ऑब्जेक्ट placed in the path of positive rays, the shadow of this object fall in the front of wall, not left side or right side. It means अगर इसके ठीक सामने बना है, it means these rays always travel in straight line. Okay, and next, what is second property or second characteristic feature of positive rays? कहें क्या कि the speed of these rays is far less as compared to the speed of cathode rays. Okay, the speed of these rays means positive rays is far less, मतलब बहुत कम होता है as compared to the speed of cathode rays. Okay, तो यह भी एक प्रॉपर्टी है किसकी, पॉजिटिव रेज की. ओके, दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, इसको आप खुद ही समझ सकते हैं. ओके, थर्ड प्रॉपर्टीज, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. अंडर द influence of electric field or magnetic field, under the influence of electric field or magnetic field, rays get deflected towards negative charged plate. Okay, so under the influence of electric field or magnetic field, rays get deflected towards negative charge plate. It means if a electric field created in the path of positive rays, these rays get deflected towards negative charge plate की तरफ डेविएट कर जाता है या डिफ्लेक्ट कर जाता है. It means we can say that these rays is the consist of positive charge particles. Okay, so this is the third properties of positive rays. And next properties, they affect photographic plate. कहीं क्या कि these rays affect photographic plate. ये जो रेज है वो भी क्या करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर देती है, मतलब उसको ब्लैकिश कर देती है या काला कर देती है. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फिफ्थ प्रॉपर्टीज, द वैल्यू ऑफ E by M ratio, the value of E by M ratio for these rays depends
अपॉन द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस मतलब कि द वैल्यू ऑफ E by M ratio, charge to mass ratio for these gases means for positive rays or canard rays or for proton depends upon the nature of gas। तो किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, उसमें किस टाइप की गैस भरी हुई है, उसमें हाइड्रोजन भरा हुआ है कि हीलियम है कि नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, नाइट्रोजन गैस है, जो भी गैस भरी होगी उसी पर E by M की वैल्यू क्या करती है? डिपेंड करती है। इट मींस वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ E by M रेशियो फॉर दीज रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, 6 properties they can penetrate thin foil of metal, they can penetrate thin foil of metal। okay, however their penetrating power is less than that of cathode rays। ओके, इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कैथोड रेज की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, जबकि कैथोड रेज की पेनिट्रेटिंग पावर मतलब पेनिट्रेट करके पार करने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो व्हेन सेवन प्रॉपर्टीज, व्हेन स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड कोटेड मतलब फ्लोरोसेंट मटेरियल इज द मिडल ऑफ जिंक सल्फाइड। तो व्हेन स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, they produce फ्लोरेसेंस, अगर जो एनोड रेज है वह जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन पर स्ट्राइक करता है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लोरेसेंस उत्पन्न करता है, मतलब चमक उत्पन्न करता है। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज और कैनोड रेज। ओके, समझ में आया सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया है ध्यान से इसको पढ़िए और प्रॉपर्टीज को लर्न करना है पूरा अच्छे से, क्योंकि कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में कैथोड की प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज की, पॉजिटिव रेज की या न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी सब देता है, उसमें मैच कराने के लिए आता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ E by M रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ E by M रेशियो किसके लिए? E by M रेशियो किसके लिए? फॉर पॉजिटिव रेज, फॉर पॉजिटिव रेज ऑफ हाइड्रोजन गैस, ओके, when hydrogen gas filled in the discharge tube, when hydrogen gas filled in the discharge tube at very low pressure, so what is the value of E by M for hydrogen gas? Okay, so when hydrogen gas filled in the discharge tube at low pressure, protons are obtained। क्या obtained होता है? protons are obtained। okay, तो it means positive rays contain protons when hydrogen gas used in discharge tube। okay, जैसे हाइड्रोजन है, जब हम 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल पास करते हैं तो जो गैस होते हैं वह आयनाइज हो जाते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो चार्ज कौन सा आएगा? H+ चार्ज। ओके, ये यहाँ से हटा के हम लिखेंगे
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके, H प्लस क्या है? व्हाट इज द H प्लस? H प्लस इज प्रोटॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। ओके, तो अब प्रोटॉन कैरीज इक्वल बट अपोजिट चार्जेस टू दैट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था? -1.602 into 10 to power -19 कूलम। और फॉर पॉजिटिव रेस के लिए क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1.602 into 10 to power -19। क्लियर? ये हो गया हमारा E चार्ज हो गया। मास क्या है हमारा? 1.726 into 10 to power -27 kg, ये हो गया। ओके, 1.672 into 10 to power -27 kg। ठीक है, इतना हो गया हमारा मास। तो 10 E बाई m क्या होगा? 10 E बाई m रेशियो। तो E कितना है? 1.6 into 602 into 10 to power -19 अपॉन मास कितना है? 1.672 into 10 to power -27। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो 9.58 into 10 to power 7 कूलम पर केजी आएगा। दिस इज द E by m रेशियो फॉर हाइड्रोजन गैस। ओके, अब मान लीजिए कि when we fill helium gas in discharge tube, तो E by m value for हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए E by m की वैल्यू क्या होगी? कब? कि when hydrogen gas filled in the discharge tube, तो what is the E by m value for anode days or cathode days or for protons? ओके, तो हीलियम गैस, हीलियम, और हीलियम इज अ अल्फा पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है ये? अल्फा पार्टिकल्स। फार्मूला होता है इसका 2He4। व्हाट इज द 2? 2 is the atomic number, or we know very well atomic number equal to the number of protons and number of electrons, equal to the number of protons and number of protons equal to the number of electrons। So it means helium has 2 protons। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? E by m वैल्यू फॉर हीलियम, तो 2 प्रोटॉन्स है 2 into, और चार्ज क्या है हमारा? वही 1.602 into 10 to power -19। ओके, और मास कितना है फॉर हाइड्रोजन? 1.672 into 10 to power -27। और हीलियम का मास कितना है? 4। ओके, तो क्या हो जाएगा? 4 into 1.672 into 10 to power -27, इतना क्या होगा? केजी। और ग्राम में करेंगे कितना हो जाएगा? -24। ओके, अब इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो आंसर कितना आएगा? 4.79 into 10 to power 7 into 10 to power 7 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। तो दिस इज द E by m वैल्यू फॉर हीलियम गैस, और दिस इज द E by m वैल्यू फॉर हाइड्रोजन गैस। ओके, ये क्या था आपका पूरा ओवरऑल डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो नेक्स्ट your syllabus has been reduced, so in the next class we will teach you Bohr's atomic model। okay, some topics are removed from your syllabus, कुछ syllabus topics remove कर दिए गए हैं, तो next topic से हम Bohr's atomic model आपको पढ़ाएंगे। okay, enjoy with chemistry, thank you। और इस कंडीशन में, इस कोरोना काल में आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, काढ़ा पीते रहिए ध्यान से, और सबसे 2 गज की दूरी बनाए रखिए, और मास्क का यूज जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।